और यहाँ पे लिखने के लिए एनोटेशन टूल होगा या ये होगा, एनोटेशन वाला होगा ना ये। अच्छा, ओके, अच्छा इसमें चलिए। तो थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सिलेबस है, सॉरी जीएस का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। किस तरीके का जीएस का सिलेबस है। ओके, ये मेरे ख्याल से पूरा नहीं दिख रहा है इसमें। चलिए, तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस है आपका इंडिया, एक्चुअली ज्योग्राफी, द टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी दैट यू हैव इन योर जनरल स्टडीज सिलेबस, एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू योर GS1 and GS3. Okay, you will find the concepts of a geography or the topic of a geography in two papers of your general study. One is GS1 and another one is GS3. Okay, now so if you look to this one, if you look to this GS1 syllabus, okay, then it is going to be India and world geography. Okay, that is physical, social, economic geography of India and the world. So this is totally related to your prelims part, because if you look to the prelims syllabus, then this is the simple line which is mentioned, that is India and the world geography, physical geography, physical, social, economic geography of India and the world. This is only about, means this is about the prelims. Now, if you come to this main syllabus, then you will find that salient features of the world physical geography. Okay, physical geography means, what is the meaning of physical geography? Which means you need to study about geomorphology, you need to study about climatology, and you need to study about oceanography, and also you need to study about a biogeography. Okay, even though environmental geography is also an important component of physical geography, but environmental geography हम geography के साथ deal नहीं करते हैं, we take a separate section as ecology and environment. So most of the concepts of environmental geography, they become to be the part of your ecology and environment syllabus, and many concepts of a biogeography is also a part of ecology and environment. Okay, so here in this geography session, we will be restricting ourselves to in terms of physical geography in terms of three areas. One is going to be a geomorphology, another is going to be a climatology, and the third one is going to be a oceanography, and we'll take us some idea about a biogeography also, कि biogeography के अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है. जैसे for example you need to study about the soils, okay, you need to study about the distributions of the plants and animals, that how the distribution of plants and animals are taking place. You need to study about the concept of a biomes, how the distribution of the different ecosystems are taking place over to the globe, and what are the causal factors, कि भाई रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो यहीं पे ही क्यों मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट और जगह पे क्यों नहीं मिलते हैं. वाई वी हैव अ टुंड्रा टाइप ऑफ अ वेजिटेशन in one location and we have a different savanna type of a vegetation in a different location. So what are the governing factors, कि उनके controls क्या हैं. Okay, what are the controls. Okay, so that is a physical geography, okay, that we will study in physical geography. Next one that we are going to study is distribution of the key natural resources across the world. Key, you need not to go in terms of all the resources. Here here you need to focus about the word that is here is key natural resources. That is a key natural resources. Okay, so the word that you need to focus here is about the key natural resource. Actually मुझे मैक्स हब की आदत है. Okay, so okay, okay. So the key natural resources, that is about this one. So इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे resources को ध्यान नहीं देना है. Okay, it's about key natural resource. Okay, key natural resources मतलब जो resources काफी important हैं. Okay, so key natural resources, जैसे आज की डेट में हम लिथियम की बात करते हैं. Okay, लिथियम अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करोगे तो लिथियम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी. आज आप बात करोगे तो लिथियम की इंपॉर्टेंस जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है. ओके, धीरे धीरे करके ऑयल की जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है. ओके, फॉसिल फ्यूल जो है उनकी इंपॉर्टेंस रिलेटिवली कम होती जा रही है, बट जो और रिसोर्सेज हैं उनकी वो स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज बनते जा रहे हैं, एंड दे आर डेवलपिंग टू बी एज अ की नेचुरल रिसोर्स. Okay, so we need to see what are again an important natural resource that we have.
because with the change in the climate के changes के साथ साथ अगर हम देखें तो we are going to face a scarcity of the water. Okay, and scarcity of the water होगा तो obviously this become to be an important governing factors in terms of a relationship between the two countries. Okay, a country rich in water resources and country poor in water resource. Okay, so that is all food resources. Okay, with the increase in the population, obviously we need to have a sufficient quantity of a food production, and for a food production it is very important that you should know that what are the governing factors of the food production. Okay, so for example, soil is an important factor. Okay, rainfall is an important factor. Is it clear? Government policies are an important factor. Inputs into the agricultures are an important factors. So in that situation, you need to look to key natural resources. Okay, across the world. Okay, including South Asia and Indian subcontinent. Is it clear? So factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector. Okay, primary, secondary and tertiary sector. Now this is going to be the part of your economic geography. Okay, so you need to see that how means primary sector में हम क्या डालें, mining को डाल सकते हैं, agriculture related activities जो हो सकती हैं, that they can be the part of the primary sector. So what are the factors which governs them, controlling the factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries. Okay, and in various parts of the world. For example, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि related to the sugarcane industries. Okay, location means the question was related to the location of the sugarcane industry. Sugarcane industries की location को लेके क्वेश्चन पूछा था कि what are the factor responsible for the location of a sugarcane. Okay, why we have a more means in the southern part of the India. Earlier it was northern part of the India, we were having a more sugarcane industries. Now the sugarcane industries are moving towards the southern part of the India. So what are the factors which are controlling such mobility, such migration of the industries from the northern part of the India and to the southern part of the India? Or there can be a question that what are the factors which are responsible for controlling the location of sugarcane industries in the northern part of the India, even though northern part of the India is not suitable for the sugarcane production, because why? Because it is relatively low rainfall area, and sugarcane requires a good quantity of water. Okay, sugarcane requires a good quantity of water. So in that cases, still you can see the western UP part or the part of the Haryana, okay, and in some part of the eastern UP also. आप देखोगे बहुत सारी sugarcane fields जो होंगे वो आपको मिल जाते हैं. Okay, even though it is not going to be a profitable venture for them, if they move to some other type of a crop, they will earn more. Okay, but still they are continuing with the same type of a monocropping. Monocropping का मतलब when you are growing a single crop year, all the year. So that is called to be as a monocropping. So what are the factors which are governing? Okay, एक बार क्वेश्चन इसी तरीके से आया था कि what was the reason that the green revolution was restricted to a limited part of our country, even though we have a much fertile land in the eastern part of our India, but the green revolution did not got a success, or the benefits of the green revolution did not reach into the eastern part of the. Is it clear? So that type of a question means primary sector and secondary sector, obviously you include all the industries that we have, okay, and then we have a tertiary services sector that we include. Okay, so that is going to be in the various parts of the world, including India. Okay, now important geophysical phenomena. Now the next topic is important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclones, etc. Okay, अब जब ये एक्सेट्रा लिख दिया ना तो अब ये अनलिमिटेड हो गया. जब सिलेबस में एक्सेट्रा डल जाता है ना तो अब यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनाएगा उसकी चॉइस हो गई है, क्योंकि वो तो कह देगा कि एक्सेट्रा में है वो जो हमने बोला है. ओके, तो कुछ भी हो सकता है उस मतलब ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, changes in critical geographical features. Okay, means you need to focus on changes in the critical geographical features. What are the critical geographical features that we have? Ice caps that we have. Okay, geographical features in terms of mountains. Okay, geographical features in terms of oceans, geographical features in terms of deserts,
So what are the changes you are finding into critical geographical features, okay, including water bodies and the ice cap? Okay, so that will be and what are the changes that you are seeing in terms of a flora and a fauna, okay, and the effects, okay, and their effects also you need to study of such changes. ओके तो ये सिलेबस आप लोगों ने देखा एक बार, क्योंकि ये सिलेबस तो डिटेल में तब समझ में आएगा कि जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे, ओके, क्योंकि अगर मैं हर चीज को अभी समझाने बैठ जाऊंगा तो फिर वो सिलेबस ही शुरू हो गया पूरा का। Okay, now the next topic that you will find is from GS3. Okay, GS3 syllabus mein, that is about the major crops. Okay, so just about the major crops that we have in terms of major crops. So in terms of major crops that we have, so cropping pattern in the various parts of the country and different types of the irrigation and irrigation system. Okay, this is in your general studies third, means 3. You will see storage, transport and marketing of the agricultural produce and the issues related to the issues and related constraints. Okay, issues क्या है इन चीज को लेके और उसको लेके bottlenecks क्या क्या है, constraints क्या क्या है, वो आपको देखना। तो ये पूरा ऑलमोस्ट आपके करंट अफेयर्स के अंदर में एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं वो लगातार आपकी चलती रहती है। ओके, और योजना और कुरुक्षेत्र आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं उस चीज को, योजना और कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ते हैं। योजना और मैं कुरुक्षेत्र अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि आपको रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने हैं इस एग्जाम के लिए। ओके, तो खास तौर से ज्योग्राफी के लिए रिलेटेड कंस्टेंट्स एंड देन ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ द फार्मर्स। ओके, तो किस तरीके से हाउ वी कैन यूटिलाइज द ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ द फार्मर्स। ओके, अभी जैसे हमने फार्मर्स इनकम को ट्रिपल करने की, ट्रिपलिंग मतलब था ना कि फार्मर्स इनकम को डबल करने की बात की गई थी कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम को लेकर, तो उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है। ओके, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड हाउ द फार्मर्स मे गेट द बेनिफिट ऑफ द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन का किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर में एडिशन किया जाए और इट में रिजल्ट इनटू द ग्रोथ ऑफ द फार्मर्स। ओके, तो किस तरीके से, तो वो भी आपको देखना है। ओके, एंड देन द रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके, एंड स्कोप एंड द सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब चीज। ओके, अभी जैसे अभी इसके अंदर में भी आप टोमेटो प्राइसेस को भी आप कर सकते हो। ओके, टोमेटो प्राइसेस जो है ना, वो भी एक टोमेटो का प्राइस जो होता है जैसे ही बढ़ता है तो बाकी जो सब्जियां होती हैं वो रिलेटिवली सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि टमाटर जो होता है एक बेसिक इंग्रेडिएंट है नियरली इन ऑल द वेजिटेबल्स। ओके, तो अगर टमाटर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आप देखते हो कि बाकी बैंगन सस्ता हो जाता है कि ताकि लोग जो, क्योंकि बिकॉज जो लोग बैंगन खा रहे हैं या जो भी है। तो अब इसके अंदर में आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, ओके, चाहे वो शुगर से रिलेटेड हो, चाहे वो पैक्ड फूड से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनका स्कोप क्या है। ओके, ओके, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी लोकेशनल फैक्टर्स अगर हम देखना चाहें कि डू वी हैव लोकेशन ऑफ अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज in a certain geography or the food processing industries are decentralized. Okay, so that is also seen, and then upstream and the downstream requirement. Okay, upstream and the downstream requirement and the supply chain management, that is also an important, because the management of the supply chain, और उसी के अंदर में बहुत सारे और भी चीज़ें होंगी जो आप इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं। And then you will move towards the infrastructure geography, that is about the energy, that is about the ports, that is about the roads, that is about the airports, that is about the railway, etc. इसमें भी etc आ जाता है। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़, ओके, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो, एयरपोर्ट से रिलेटेड हो, वो सारा का सारा आपको। तो मैं सिलेबस को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो पार्ट के अंदर में विल जस्ट ट्राई टू सेग्रीगेट द सिलेबस इनटू टू पार्ट। ओके, फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी अ फिजिकल ज्योग्राफी एंड अनदर वन इज गोइंग टू बी अ इंडियन ज्योग्राफी। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी वी विल कवर all the topics of physical geography, that includes geomorphology, that includes climatology, and that is obviously we will include the
oceanography. Okay, and we'll take an idea about the biogeography. And then we will move towards another component, and that component is about the Indian geography. अब इंडियन ज्योग्राफी के अंदर में भी हम पहले फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, वी लुक टू द फिजिकल ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी में इंडिया का फिजियोग्राफी जो है वो पूरी देखेंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज जितने भी, because they are an important part of your prelims examination also and many other competition. Not only about the civil services, if you may be appearing for other competition, so these physical geography of India is going to be equally relevant. So we will look to the drainage system of the India, different types of the rivers, their utilities, okay, their importance, their economic importance, all that discussion we will take in the Indian geography. And then we will move towards the human and economic geography of India and the world. So in the case of a human and economic geography, we will discuss about the population, population distribution, population density, population policies, okay, population problems, what are the problems related to the population, okay, how the population is distributed into on the globe, and also if we take a regional idea, then in India also, that you will find that the distribution of the population is also governed by a certain factors. Okay, you don't find a dense population in a desert region of a Rajasthan. Okay, or even in this entire Rajasthan, you will find that there are some regions where the density is high, and in many regions there are the density is relatively low. Is it clear? So what are the governing factors? So that we are going to discuss in the context of a human geography. Okay, we will also see that what are the governing factors in the context of economic geography. We will see that what are the governing factors in terms of our industries, how means industrial location we will see. आप लोगों ने जैसे ग्रेजुएशन के अंदर में इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पढ़ी होगी आपने, ओके, वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ा है भी आपने, हो सकता है अभी पढ़ लोगे तुम, तो ग्रेजुएशन के अंदर में तो आएगी ज्योग्राफी के अंदर में, ओके। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जब भी कोई आप एक यूनिट को लगाते हैं, कोई भी एक इंडस्ट्री को आप लगाते हैं, तो उसके पीछे आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, और एक सक्सेस ऑफ द इंडस्ट्री या कोई एक इंडस्ट्री सक्सेसफुल एक एंटरप्रेनर हो, एंटरप्राइज बने, तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. तो वी विल पिक अप ओनली दोज एस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द ज्योग्राफी. हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में एंटर नहीं करेंगे, ओके ना ही हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में एंटर करें, because agricultural economics, industrial economics, they are the part of your Indian economy. So that you need to study in the context of Indian economy. But we will take some telescopic view about agricultural economics also. We will discuss about the farm subsidies and the role of the farm subsidies. We will also have an idea about the agricultural bill which or act that was repealed. So we will also see that what we can do in terms of doubling the farmers' income, okay, and what are the different areas. So we'll look to the industry part, and then we will move towards the area of our infrastructure in terms of energy, in terms of a port, in terms of a road, in terms of airports, okay. अभी और जो भी लेटेस्ट स्कीम्स चल रही हैं वो भी हम देखेंगे. अब जैसे आपके सिलेबस के अंदर में जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस जो GS1 के अंदर में आपका दे रखा है, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर, ओके, सो दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर फिजिकल ज्योग्राफी. So wherever we find that critical geographical features are needed to be discussed in a particular context or in a particular area, so that we will discuss in the physical geography. Okay, we will discuss about the changes into the ocean temperatures के changes और उसके consequences क्या हो सकते हैं. We will discuss about the critical geographical features like in terms of coral reefs, changes in critical geographical features. We will discuss about the coral bleaching. We will discuss about the melting of the glaciers, okay, and what are the factors responsible for the melting of the glacier. We will discuss about the climate changes, okay, about the changes in and the signs of the climate changes, and what are the possibilities and how we can cope up, okay, and how we can manage ourselves, or how we can adapt ourselves with the change in the climate, okay, because you know that we have an increase in the temperature, and it is expected that maybe after 2 means generally जो अगर ये trend चल रहा है तो by 2030
IPCC 2040-50 की बात कर रही थी, but it seems that by 2030 you will find a significant change in the temperature, and this significant change in the temperature will result into a significant change in the critical geographical features of the globe. Okay, because the circulation pattern that we have, okay, over to our globe is actually in a dynamic equilibrium. So whenever any change come, then a new equilibrium will get established. So with that establishment of a new equilibrium, there will be lots of the changes that will take place over to the earth surface. Okay, so that we will study with respect to a particular topic. मीन्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही हम उस चीज़ को पढ़ते रहेंगे कि वो जो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना है वो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, जो ओशनोग्राफी में पढ़ना है वो ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, और जो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना है वो. ओके, सो ये कुछ मैं एक आपको आइडिया दिया है इसके बारे में कि दिस इज व्हाट योर सिलेबस इज. एवरी ईयर इफ यू लुक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, इस साल भी ठीक ठाक क्वेश्चंस थे. इफ यू लुक टू ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट को आप अलग अलग नहीं कर सकते. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर है तो आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा समझ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर है तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा समझ. तो मेरा मानना ये है कि ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट को आप अलग अलग नहीं कर सकते, और उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ज्योग्राफी आपके क्लियर होने चाहिए. ओके, तो हम देखें तो अराउंड 32 क्वेश्चंस के लगभग इस साल भी थे. इफ़ यू कंबाइंड इट विद द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो अराउंड मोर देन 30 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे. ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस मतलब आप ऐसे कर लेंगे सॉल्व. ठीक है, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी चाहिए उसके. ओके, तो इतना है. और अगर हम मेंस की बात करें, तो मेंस के अंदर में अगर हम देखें तो मेंस के अंदर में तो फिर इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हुए हैं. मैं 2021 का मेरे पास ये स्लाइड बनी हुई थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं कि विच आर रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी पार्ट. ओके, so if you look to this one, so we have approximately 250 marks, 250 to 270 marks तक आपका ज्योग्राफी पॉइंट. ओके, so 1/4 part of your entire exam of your general studies is going to be related with the geography. ओके, तो ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इजी भी है अगर आप फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे. अगर आप वो ड्राई फैक्ट्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे कि इस माउंटेन की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ये उसकी उस रिवर की लेंथ कितनी है, ये भी पता होने चाहिए. ओके, दे आर इम्पॉर्टेंट, बट दैट विल नॉट मेक यू अ गुड होल्ड ऑन द ज्योग्राफी. आप उनको जान के आप ये नहीं कह सकते कि वो ज्योग्राफी आपको आती है, क्योंकि वो तो फिर आपको जीके टाइप नॉलेज हो गई कि वो तो आप कोई भी 100-150 रुपए की किताब मिलती है उसके अंदर में जाके, और उसके अंदर में बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे होते हैं, आप उसके पर कर सकते हैं. वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ने हैं. ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसको नहीं पढ़ना है या उसको ध्यान नहीं देना है, वो भी आपको ध्यान देना. ओके, बट दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. That's just a part of the geography. That is not at all a complete. So don't take a geography as a gadget of facts. Geography is highly conceptual, okay, highly scientific. Okay, those who are from science background or those who कुछ लोग जो जिनके पास हैं geography in their graduation, so they will understand that geography is not a subject कि भाई हम उसको केवल एक लिस्ट बना लेंगे और उसके थ्रू कर लेंगे. Every concept is having causes. So you need to understand the cause and effect in the geography. And if you can understand that cause and effect, क्योंकि माउंटेन बने तो क्यों बने, हर जगह क्यों नहीं बन गए, कुछ ही जगहों पे क्यों बने. अर्थक्वेक्स आते हैं तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में ज़्यादा अर्थक्वेक्स की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर में अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटीज़ जो कम होती नहीं. ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं आते हैं. ओके, बट हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक्स जो होते हैं दैट यू विल फील मोर इनटू द northern part of the India, or especially in the foothills of the Himalayas, near the foothills of the Himalayas, or the regions close to the Himalayas. Okay,
और इफ यू लुक टू दी, इफ यू फर्दर मूव, जैसे जैसे आप साउथ में जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ द जो अर्थक्वेक्स होगा वो रिलेटिवली कम हो जाएगा. Why we have a certain reasons where the cyclones normally hit a land. If you look to the cyclones of Bay of Bengal, then you will find that most of the cyclones are touching from Visakhapatnam to West Bengal, to the regions of the west. This is a complete arc. So whenever you look to any cyclone, you will find that many cyclones are hitting in that particular direction. In the Arabian Sea, you will find that the cyclones have a different path, and into the Bay of Bengal, you will find that the cyclones are having a different. Okay, why we have more cyclones into the Bay of Bengal in comparison to the Arabian? Is it clear? Now, why we have this monsoon? अभी तो मानसून चल रहा है ना, तो मानसून के टाइम पे भी हो सकता है हमारा मानसून आ जाए, हम भी पढ़ने लगे मानसून के टाइम पे भी. तो what is the reason behind this periodic reversal of the winds? What is the reason behind that every year we have a date with the monsoon? Okay, we have a date with the monsoon, and why the monsoon is known to be as our finance minister? We call monsoon as our finance minister. Okay, so what are the factors? Sometimes we get a good monsoon, sometimes we get a below average monsoon, okay, and sometimes we get a very poor monsoon. Is it clear? So what are the factors which are controlling them? Is it clear? So that we need to study in the context of it. Okay, earth, again, earth की formation कैसे हुई, कि how the earth is formed. Okay, how the earth is formed and how the other planets are formed. Okay, and then how the atmosphere of the earth is formed. Okay, that also we need to study, and how the changes into our atmosphere are taking place with the activities of the human. So that also we need to study. How the gases are circulating over to the surface of the earth. The circulation is generally known to be, means because our earth is surrounded by a gaseous envelope, which we call to be as an atmosphere, and we have a circulation into this atmosphere. Some circulations are just at a scale of 2 or 3 meter or 4 or 5 meter. Okay, जैसे आप सड़क पे भी खड़े होते हो तो एक आप देखते हो ना, swirling motion of the dust जो होता है ना, वो आपको दिख जाता है, तो वो भी एक सर्कुलेशन. इज इट क्लियर? और एक सर्कुलेशन वो भी होता है कि जब आप समुद्र के पास खड़े हुए होते हो तो लैंड ब्रीजेज एंड सी ब्रीजेज चल रही होती हैं, तो वो भी एक सर्कुलेशन. एक सर्कुलेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन भी है, एक सर्कुलेशन टेम्परेट साइक्लोन भी, एंड एंटी साइक्लोन भी अपने आप में एक सर्कुलेशन. इज इट क्लियर? सो व्हाट आर द वेरियस सर्कुलेशंस and what are the importance of these circulations? Okay, so these circulations are taking place with the present regime of temperature and pressure. Now, if the regime of temperature and pressure will get changed as a result of climate change, then there will be a change in the circulation, and this new pattern of the circulation will again establish a new equilibrium. So that is why what is happening over to the earth is in the state of a dynamic equilibrium. Is it clear? Is in a state of a dynamic equilibrium. Does this point is clear? ये पॉइंट समझ में आया आपको? ओके, तो ज्योग्राफी के अंदर में अब देखो, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन्स एंड द वेस्टर्न घाट. अभी तो लैंडस्लाइड का काफी था, आपने देखा था. अब यूपीएससी में कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई करंट्स का पढ़ना है, करंट का आपको देखना है. मैं ये कहता हूं करंट नहीं, फ्यूचर पढ़ना है आपको. करंट से आप एंटिसिपेट करो कि क्या फ्यूचर में क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ज्यादातर क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो जिनकी आगे चल के काफी यूटिलिटी है, जिनकी एक फ्यूचर एप्लीकेशंस है. इट्स नॉट अबाउट कि आपने ये करंट पढ़ लिया, करंट नहीं, आप ये भी सोचो कि उससे आगे चल के क्या होने वाला, फ्यूचर का सोचो. इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. So differentiate the causes of the landslide in Himalayan regions and the Western Ghats. And despite India being one of the countries of the Gondwana land, its mining industry contributes much less to its gross domestic product in percentage. Discuss. Okay. तो अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो approximately 250 marks के from General Studies 1 and from General Studies 3. Okay. You are going to receive approximately ज्योग्राफी फॉर अबाउट 250 मार्क्स. तो अब मुझे आपको इससे ज़्यादा आपको उसकी वेटेज बताने की या इसकी इंपॉर्टेंस बताने की आपको ज़रूरत नहीं है. बाकी तो आप लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब भाई अब देखते तो होंगे ही,
तो 2000, हाँ देखो प्रॉब्लम पता क्या है, अब जो यंग जनरेशन के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोरोना ने एक काम तो करा है, अवेयरनेस तो बढ़ाई है सिविल सर्विसेज, ओके। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सिविल सर्विसेज के अंदर में बहुत हद तक ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। केवल नॉलेज का रोल नहीं है, केवल नॉलेज का रोल नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है, ओके। बहुत सारे, मैं तो पेपर डिस्कस करा है स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पूरा, तो मैं आपको बता रहा हूं, अब उसमें से हम तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं ना, हमने तो सभी को एक जैसा पढ़ाया है। अब उसी बैच के अंदर में से बच्चों के प्रीलिम्स निकले भी हैं, और उसी बैच के अंदर में बच्चों के प्रीलिम्स नहीं भी क्वालिफाई हुए हैं। उन्हीं बैचेस के अंदर में बच्चे सिविल सर्विसेज क्रैक कर जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, अच्छी रैंक मिल जाती है। और उसी बैचेस के अंदर में भी ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल अल्टीमेटली स्ट्रगल करते हैं, फिर उसके बाद दिल्ली के अंदर में अपना बोरिया बिस्तर पैक करके बैक टू पवेलियन, ओके। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस की जो 2023 की बात हुई है, टोटल अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो इट विल बी अराउंड 20 to 25 सच क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। 55 से 60 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के अंदर में ऐसे थे, ठीक है, जिसको आप एनसीईआरटी और बेसिक नोट्स जो आपने पढ़ रखे हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो 15-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना, वो दिमाग के अंदर में बहुत ज्यादा स्पेस एक्वायर कर लेते हैं और वो एक डर क्रिएट कर देते हैं। ये डर कोचिंग वालों के लिए तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जितना आप डरेंगे उतना ज्यादा एडमिशन होंगे, ओके। लेकिन बात यह है कि ये जो रियलिटी है वो यही है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में आप बैठे, सबसे पहले जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आप अपने गेस वर्क को असेस कर लीजिए, आपका गेस वर्क कैसा है, और आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 100+ स्कोर लेके आना, ओके। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपने वो टिपिकल क्वेश्चन करे थे या नहीं करे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अभी आप देखिएगा उस चीज को, जब आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी या जब आप पढ़ लेंगे उस चीज को लेके, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करके देखिए, यार ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनके लिए ना तो कोई आपको पढ़ा सकता है और ना ही आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है उन क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करनी है तो फिर तो आपको फिर रिसर्च ही करनी पड़ेगी, तब जाके उन क्वेश्चन के चांसेस होंगे आपको करने। लेकिन वो क्वेश्चन आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन को डिसाइड नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन को डिसाइड नहीं करने वाले। दे आर नॉट एट ऑल गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन और रिजेक्शन। यहीं पे एक इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ना, जब आप एथिक्स में पढ़ते हो, उसका रोल आ जाता है कि आप कितना अपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चलते हो और अपनी स्ट्रैटेजी पे बने रहते। हम बताते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स कुछ लोग मान जाते हैं, उन लोगों को समझ में आ जाता है, और जिन लोगों को समझ में आ जाता है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आता, ये स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आती, तो वो 2-2, 3-3 साल आते ही रहते हैं, मतलब उनका फिर चलता ही रहता है, क्योंकि वो अपनी जिद पे होते हैं, नहीं हमें तो वो 25 क्वेश्चन तैयार करने, क्योंकि अरे भाई 25 क्वेश्चन तैयार करके तुम वो किसी पे इंप्रेशन मारोगे क्या कि नहीं मुझे तो उन क्वेश्चन का आ रहा है। अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अल्टीमेटली क्या करना है, कितना स्कोर लाना है। इस बार की कट ऑफ नीचे ही गई होगी, लास्ट ईयर 88 आई है, 88 की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की दिखाई है ना, नो 88 की दिखाई है, तो इस बार और थोड़ा सा आसपास होगी, 86 87 के आसपास होगी। अरे भाई आप 100+ का स्कोर करना है आपको, ठीक है। इसका मतलब 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तक आप ऐसे मान के 4-5 आपके गलत भी हो जाएंगे, तो आप उसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से निकलता है, पर प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग हो चुकी है कि स्टूडेंट को लगता है कि नहीं ये भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ, ये भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ, उसके भी नोट्स पढ़ लूँ, इसके भी नोट्स पढ़ लूँ, लेकिन वो जो फंडामेंटल बुक्स है ना, उसको मैं छोड़ दूँ, ओके। तो मैं जो आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, आप रिसोर्सेज लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जो आपको रेफरेंसेस फॉलो करने हैं, प्लीज जस्ट फोकस ऑन द रेफरेंसेस एंड यू कैन राइट डाउन प्लीज।
प्लीज राइट डाउन। व्हाइट बोर्ड कहां से आएगा? इससे ही? ओके चलिए, तो रेफरेंसेस जो आपको फॉलो करने हैं, रेफरेंसेस जो आपको फॉलो करने हैं वो है, रेफरेंसेस में सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी, 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 ओके। ये जो रैशनलाइज एनसीईआरटी है इसको मत पढ़िएगा, ओके। रैशनलाइज एनसीईआरटी अभी कर दी है ना इस बार, एनसीईआरटी को रैशनलाइज कर दिया है। हिस्ट्री के अंदर में मुगल खत्म कर दिए हैं और ज्योग्राफी के अंदर में रिसोर्सेज के चैप्टर उड़ा दिए हैं। तो रैशनलाइज एनसीईआरटी नहीं हो वो, क्योंकि यूपीएससी ने रैशनलाइज नहीं करा है। आप ठीक है, आपको 11th-12th का एग्जाम नहीं देना है, आपको 10th कोई, तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इसलिए वो रैशनलाइज, अभी जो नई एनसीईआरटी आ रही है वो नहीं, इससे पहले वाली जो एनसीईआरटी है वो आप रेफर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। फॉर अ ज्योग्राफी इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 to 12th, 6 to 12th, ओके। बोरिंग लगेगा, कभी लगेगा सच 6 क्लास की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, हमें 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है या पढ़ रहे हैं हम, लेकिन वो 6 क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप बिल्डअप करना शुरू करेंगे तो आपके फंडामेंटल्स जो काफ़ी अच्छे। तो 6 to 12th की एनसीईआरटी जो होगी वो आपको रेफर करनी, ओके। एनसीईआरटी आपको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी आपको साथ साथ में करते चलना। मेरे ख्याल से अभी तक आपने पढ़ी होगी या अभी तक शुरू भी नहीं करी है आपने, नहीं करा है? चलिए, तो एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको 6 से लेके 12 तक का, मान लीजिए अगर आपको लगता है नहीं सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक 11th and 12th। मेरा सजेशन ये है कि आप 6 से स्टार्ट करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यू वांट टू मूव टूवर्ड्स अ फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द 11th क्लास एंड 12th, ओके। और नहीं पढ़ना चाहते हो तो केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे लें, ओके, क्योंकि जो मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा उसके अंदर में सब कुछ है, ओके। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो जो मैं लिखवाऊंगा उस पर ध्यान दें, ओके। दूसरा, फॉर अ फिजिकल ज्योग्राफी, फॉर अ फिजिकल ज्योग्राफी, okay, for a physical geography you can purchase a book that is written by Saminder Singh, okay, book written by Saminder Singh for a physical geography। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे आप इसको रख सकते हैं। अदरवाइज 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है जिसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, इट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट, okay। So this is, Saminder Singh is something which is optional for you, means it's not for optional, it is something your optional choice कि आप पढ़ना चाहो, if you want to go into much more details of a particular concept, okay, then you can refer a Saminder Singh, okay, Saminder Singh for physical geography। and for Indian geography, Indian geography के लिए, okay, for Indian geography you can purchase either Majid Hussain Indian geography, Majid Hussain Indian geography, okay, or if you want to purchase you can go for DR Khullad, DR खुल्लड़ की बुक है इंडियन ज्योग्राफी की, इट्स अ वेरी गुड बुक। माजिद हुसैन की भी अच्छी है और खुल्लड़ की भी है, ओके। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेंगे, इट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन, ओके। नाउ इन टर्म्स ऑफ योर करंट एस्पेक्ट, करंट्स के रिलेटेड, करंट्स को जो आपको पढ़ना है उसके लिए मैगजीन है आपकी, एक तो योजना, ओके, योजना को आपको रेफर करना है। एक है आपकी कुरुक्षेत्र, देखिए कभी आपने कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन्स जो आती हैं। अनदर वन दैट यू कैन रेफर इज डाउन टू अर्थ, ये भी सुना है आपने, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है और काफ़ी अच्छे इसमें आर्टिकल्स होते हैं और काफ़ी अच्छा। और इन टर्म्स ऑफ द न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही होंगे द हिंदू,
and Indian Express. In terms of the newspaper, you can refer The Hindu and Indian Express. Okay, these are the total resources. साथ साथ में आप एक एटलस लेनी है, आपको एटलस है आप लोगों के पास? एटलस के लिए तो फॉर द एटलस यू कैन टेक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ओके, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या किसी कंट्री की बात कर रहे हैं आपको आता है, तो हमेशा उस कंट्री की लोकेशन जो होती है वो जरूर देख लिया करिए, और उससे सराउंडिंग्स जितनी भी होती हैं वो भी एक बार रेफर कर लिया। ओके, तो ये चीज़ है। और मैं साथ साथ में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है इंडिया @75। ओके, ये विजन डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विजन डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया @75। ओके, तो ये भी बिकॉज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमिक्स, फॉर योर इंडियन इकोनॉमी, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्योग्राफी। Okay, along with that, you should be a frequent visitor of Ministry of Earth Sciences, Ministry of Earth Sciences website, Earth Sciences website. Okay, and then you have water resources, Ministry of Water Resources website. Okay, and then urban development related चीजें भी हैं, in terms of infrastructure से related भी, तो वो various government की websites हैं, and along with that you need to refer continuously for a one particular website, that is mausam.imd.gov.in, mausam.imd.gov.in. Okay, so that is also because every year there are so many journals which are published, दो पन्ने के होते हैं, but I have seen that the UPSC is picking the questions from those journals. UPSC is generating the questions from those journals. So that also you need to refer. क्योंकि देखो मेरा सिलेबस होने के बाद आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपको फर्दर अपडेट कैसे करना है, क्योंकि जब आपका सिलेबस का तो वहाँ तक का करंट अफेयर इसके अंदर में होगा, उसके बाद भी आपको खुद भी करना है, कंटिन्यूसली आपको खुद भी करना हो। अब वो आप कैसे करोगे, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करना। ओके, यूपीएससी में इस बार एक चीज़ और देखी गई है, चैट जीपीटी भी फेल हो रही थी। ओके, वो भी, उसको भी आंसर नहीं मिल रहे थे चैट जीपीटी को। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब क्वेश्चन बनाया जाता होगा तो क्वेश्चन सर्च इंजन में डाला जाता होगा और उसमें ये देखा जाता होगा कि कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि कोचिंग की जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने कितनों ने उस टॉपिक को डिस्कस कर रखा। और हर साल आप देखोगे कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तो आपको किसी भी वेबसाइट पे जिसका आंसर नहीं मिलता है, खासतौर से कोचिंग की वेबसाइट पे आपको आंसर नहीं। जब आप क्वेश्चन को डालते हो तो तब क्वेश्चन, अभी आप कोई चीज़ को ढूंढते हो तो आपको कोई ना कोई यूपीएससी की वेबसाइट खुल जाती होगी, क्योंकि कैशेस कुकीज़ आपके मोबाइल के अंदर में जा चुके होंगे। तो वो जब भी आप किसी चीज़ को सर्च करोगे तो वो कोई ना कोई किसी न किसी कोचिंग की, नियर बाय कोचिंग की वेबसाइट जो होगी वो खुल जाती है और वही आपको मैटर को दिखाती है। ये एक मोबाइल के अंदर में प्रॉब्लम है ही। ओके, वो एल्गोरिथम ही ऐसा है गूगल का कि वो आपको कैच कर लेता है। लेकिन जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन डालते हो ना, तब जब यूपीएससी का क्वेश्चन डालते हो, जब आया हुआ होता है, जब जिस साल जैसे आया और आप इमीडिएटली डालते हो, तो फिर आप देखते हो कि फिर कोचिंग की वेबसाइट नहीं खुलती है, फिर वो अलग अलग तरीके के जर्नल्स खुल रहे होते हैं या अलग अलग चीज़ें खुल रही। ओके, तो ये भी इसलिए जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए और उन्हीं फंडामेंटल्स पे आपको अपने कंस्ट्रक्शन करना। अगर आपका फंडामेंटल ही वीक होगा तो आप चाहे कितना ही पढ़ लो, लेकिन वो एग्ज़ाम में आपको धोखा दे जाए।
ओके, तो इसलिए फंडामेंटलिस्ट होना है। ओके, मतलब फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है और प्रॉपर सोर्सेज जो होते हैं उनको आपको रेफर करना, जो गुड सोर्सेज हैं उनको आपको कंटिन्यूअसली रेफर करना। जो स्टूडेंट ये कहता है कि भाई मेरा सर न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता, तो व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज? कोई वैद्य ने थोड़ी को बताया है, व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। और ऐसा भी नहीं है कि आप जीवन के अंदर में खुश तभी होंगे जब आप वर्दी पहन लोगे। अरे बहुत सारे तरीके हैं। यूपीएससी इज नॉट समथिंग विच इज, यूपीएससी तो तब होगा ना जब पैशन होगा। ओके, पढ़ने का भी पैशन होगा और ग्रो करने का भी होगा, कुछ कंट्री के लिए भी करने का पैशन होगा। ओके, तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में मन नहीं लगता, मैगजीन पढ़ने में मन नहीं लगता, साहब किताब पढ़ने में मन नहीं लगता, भैया कर क्यों रहे हो तैयारी? ओके, क्योंकि रिजल्ट तो हमें पता है। हाँ, ये है कि बैठे 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 कुछ नॉलेज तो हो ही जाएगी, ये मान के चलो, और बाकी और जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें रिलेटिवली कुछ परफॉर्म कर पाओ। लेकिन यूपीएससी अब जिस तरीके से अपडेट होता जा रहा है, यूपीएससी तरीके से चीज़ें ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं यूपीएससी के अंदर में, अब वो अच्छी ही चीज़ों को एक्सपेक्ट करने लगा। ओके, और आप ही जैसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में तैयारी शुरू करते हैं अपना, आप ही जैसे बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग से कोई स्टूडेंट आ रहा है जो वहाँ जाके क्वालिफाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप ही जैसे बच्चे हैं जो क्वालिफाई। ओके, एक साल आप कंटिन्यूअसली अपने आप के साथ कमिटमेंट के साथ पढ़ाई कर लो, आप खुद देखना एक साल बाद आपके अंदर में बहुत चेंज आ जाए और चीज़ें बहुत हद तक आपकी पकड़ में आ जाए। ओके, so I'll come back to the topic. So these are the resources that you are expected to follow. Okay, okay, so let's start with the very first topic, and today we will have some discussion about a subject as a geography. Okay, we will discuss about, and if the time permit, because I think we are having 2 hours class now, it is going to be a 2 hours class. Okay, okay, so if the time permit, then we can extend the class to some more time. Okay, or we will move towards the next topic. Is there any doubt? Okay, किसी का और का कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। बेटा आपका? तुम बताओ। ओके, तो एक दूसरी चीज, क्लास मिस नहीं करनी है। हर क्लास पिछली क्लास से लिंक है। अगर आपने 2 दिन की क्लास मिस कर दी तो आप फिर आपको कुछ समझ में नहीं। अब आपको बुखार है, या आपको भूख लग रही है, या आपको कुछ और प्रॉब्लम है, ओके, ये आप जानो। क्लास मिस करने का मतलब है कि आपने कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना एक कंफर्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हो, तो आप ऑफलाइन में ही आके पढ़ो, क्योंकि जब स्टूडेंट ऑफलाइन में बैठा हुआ होता है तो हमारा अटैचमेंट उस स्टूडेंट से ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दी ऑफलाइन, और हम ज़्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं इन कंपैरिजन टू दी। हालांकि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बराबर ही पढ़ाते हैं, बट टेक्नोलॉजी अपने आप में एक लिमिटेशन है। टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड भी है तो टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव साइड भी। ओके, तो कोशिश ये करिएगा कि क्लास मिस ना हो। बहुत ही इमरजेंसी आ जाए तो बात अलग है, तब आपके पास ऑप्शन होगा रिकॉर्डेड देखने का या जैसा भी होगा। लेकिन वही बात है, रिकॉर्डेड देखते हैं जहाँ 3-4 लेक्चर पेंडिंग हो गए, फिर उसके बाद देखना बंद। जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, 2 दिन छोड़ दिया तो फिर वो पढ़ा नहीं जाता है, फिर वो रद्दी में ही जाता है ना। कभी भी 2 दिन पुराना न्यूज़पेपर उठा के आप पढ़ते नहीं है, फोल्ड का फोल्ड रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, घर वाले जब आपका रूम साफ करवा रहे होंगे या कर रहे होंगे तो सारे न्यूज़पेपर उठाए और सीधे वो रद्दी में चले गए। ओके, न्यूज़पेपर इज एन एक्साइटमेंट व्हिच लास्ट फॉर अ डे। ओके, अब अगले दिन आप आज का न्यूज़पेपर नहीं उठा के देखो। इज इट क्लियर? अब तो यहाँ पे तो सेम डे आता है ना, सेम डे आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी और जैसे गुवाहाटी वाटी में देखता हूँ, वहाँ पे तो एक दिन लेट आता है पेपर या शाम में आता है। आप लोगों को तो सेम डे मिल जाता है पेपर। ओके, और मैं बीच बीच में आप लोगों को जो भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो आती रहती हैं, ओके, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। देखो ये ज्योग्राफी है यहाँ पे,
और ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि और जैसे जैसे आपको सिलेबस समझ में आएगा वैसे वैसे आप खुद भी लिंकअप करने लगो। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि ज्योग्राफी इज नॉट ओनली अ फिजिकल ज्योग्राफी, इट इज अबाउट ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम न्यूज़पेपर देख रहे होते हैं ना, तो पॉपुलेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है उसको हम ज्योग्राफी से हटा देते हैं। नहीं, जब वोल्केनो की बात करेंगे, अर्थक्वेक की बात करेंगे, माउंटेन की बात करेंगे, तभी ज्योग्राफी होगी, ऐसा नहीं है। ओके, so we'll move towards what is geography. Now write down the heading. Okay, what is geography? What is geography? What is geography? इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा क्या? पॉसिबल है इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए? बैकग्राउंड अब सही है, ठीक है। व्हाट इज ज्योग्राफी? ओके, अब हमें या तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की आदत है या व्हाइट बोर्ड पर भी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। ओके, व्हाट इज ज्योग्राफी? एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज ज्योग्राफी? एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज ज्योग्राफी? Study about interior of the earth is geography, is a part of geography, is a part of geography. Yes, और बेटा आप बताओ। Various phenomena that occurs on the earth. Okay, चलो ये भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर में। आपने जो बोला कि स्टडी ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, चलो ये भी हम, बट दैट इज नॉट अ कंप्लीट ज्योग्राफी। ओके, आप बताएं बेटा, आपका नाम क्या है? जलनित सिंह, हाँ बताएं। ओके, ओके, इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, so cannot be defined. Okay, but if you want to define, then what, how you are going to define? Okay, yes, चलो मैं बोल रहा हूँ अब लिखिएगा आप उस चीज को। द वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरी क्लास में लिखना आपको पड़ेगा काफी, ओके, क्योंकि वो समझाने से फिर वो नोट्स नहीं बनते हैं ना, तो सब बेकार हो जाता है। द वर्ड ज्योग्राफी was first used by the Greek scholar Eratosthenes in 3rd century BC. Eratosthenes in 3rd century BC. Okay, देखिएगा, it is derived from two words. Geography is derived from two words. One is geo, means earth, and another is graphy, means graphios, which means study. Okay, it is derived from two words. First one geo, and another one is graphy or graphios. Okay, and which means study. Okay, full stop. In this sense, geography is defined as
study of earth, or a as a study of earth, or a description of earth. This point is clear? This point is clear? Description of earth. आगे लिखिएगा, लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, एक स्कॉलर थे फ्रॉम द सेम साइड, ग्रीक स्कॉलर थे एंड रेजिडेंस ऑफ मिलेटस, ओके, एंड उनका नाम था हिकेटियस, ओके, एंड हिकेटियस प्रोवाइडेड द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ in his book Hesperidos, okay, and therefore the Hecataeus is known as a father of geography, okay, write down Hecataeus, Hecataeus. Hecataeus provided the first description of the earth in a systematic manner, description of the earth in a systematic manner, in his book Hesperidos, and therefore he is known as father of geography, okay, therefore he is known as father of geography. Okay, next point, in modern times रिचर्ड हार्टशॉन, रिचर्ड नाम सुना है किसी ने? रिचर्ड हार्टशॉन, बेटा बस आज ही ये नाम याद रखने हैं, कल से इनके नाम को हम यूज नहीं करेंगे, सीधे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए जरूरी है, ओके, क्योंकि किसी चीज को जब हम श्री गणेश कर रहे होते हैं ना, तो सारे भगवानों को याद किया जाता है. बेटा दोनों में एक्चुअली है क्या कि ज्योग्राफी इज मोर कंसर्न अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड जियोलॉजी इज कंसर्न अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अबाउट द नेचर ऑफ द, अबाउट द फिजिकल पार्ट ऑफ द अर्थ, ओके. तो देयर इज अ डिफरेंस, जिसको हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, एक भूगर्भ विज्ञान एक भूगोल है, ओके. So whenever you are going to study about the interior of the earth, how the material of the earth, nature of the earth, activities taking place into the earth, okay, then we are more concerned about the geology, okay. And when you are taking a geography, then geology can be taken to be as a part of geography, okay. Geology can be taken to be, दोनों में similarity है कि both are taken to be as a earth sciences, both are earth sciences, okay. But geography is much more broader than a geology, much more broader than a geology, because in the geography we study about the earth interior, but our focus area in a geography is about the surface of the earth, okay. So whenever any changes taking place over to the surface of the earth and which may have their roots in the geology of the earth, then in that situation we will be studying about the geology. Is it clear? जियोलॉजिस्ट जो होगा वो डीप तक जाएगा, अंदर तक जाएगा, सेंटर तक जाएगा, लेकिन ज्योग्राफर नहीं जाएगा. ज्योग्राफर का मेन कंसर्न एरिया क्या है? सरफेस, ओके.
लिखेगा इन मॉडर्न टाइम्स रिचर्ड हार्टशोन डिफाइंड ज्योग्राफी एज accurately is defined geography as accurate, orderly, accurate. रिचर्ड हार्टशोन की डेफिनेशन आज भी फॉलो की जाती है ज्योग्राफी. ओके, accurate, orderly and rational description about the variable character of Earth's surface. Okay, accurate, orderly and rational description about the variable character of the Earth's surface. Okay, now here we are more concerned, these are the scientific lines. Accurate होना चाहिए. Accurate कब होगा? Accurate कब होगा? कोई भी चीज का accurate description कब होगा? आप कह सकते हैं, बट साइंटिफिकली प्रूवन करने के लिए क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. ऑब्जर्वेशन is a basic scientific tool. Observation is a basic scientific tool. ओके, अब आप कहने लगो कि मणिपुर के अंदर में उस कम्युनिटी के लोगों ने ये कर दिया और उस कम्युनिटी के लोगों ने ये कर दिया, तो ये आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं. जब तक आप वहां जाके चीज़ों को देखोगे नहीं, वहां पे जाके गैदर नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन को, तब तक आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. तो ऑब्जर्वेशन इज अ बेसिक requirement for any scientific analysis or for any scientific conclusion. ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है. अब हर जगह तो आप जाओगे नहीं ना, हर जगह तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना. अब आइसलैंड के अंदर में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं तो आपको नहीं साहब हम तो नहीं मानते जब तक जाके नहीं देखेंगे. अरे भाई, वी हैव अ टेक्नोलॉजी नाउ. अभी थोड़ी कि मून के बहुत सारी चीज़ हमें मून के बारे में पता है, लेकिन ठीक है फिर भी हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए भी जा रहे हैं. Going to the moon is like reinventing the wheel. It's like reinventing the wheel because moon का चप्पा चप्पा मैपिंग की जा चुकी. So moon is not something which is a very unknown planet. Okay, Mars seems to be, but moon is something which is very known, very properly analyzed, and every part and corner of the moon is analyzed. Okay, but still there are some blind spots. ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो चुका है, but काफी हद तक हो चुका. Okay, so but we have not done it, others have done it. Okay, so we are totally dependent upon to the observation that they have. So in order to have our first hand information, we have planned our Chandrayaan, or we are heading towards the moon. Okay, and hopefully by the God grace we will be landing, soft landing be, I wish he was but successful. Okay, so observation is a basic requirement, and along with the observation it is very important that there should be measurement. Measurement भी होना चाहिए. Okay, measurement होना चाहिए. There should be a measurement, because without measurement you cannot compare the two things. जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मैं आपसे कहता हूं कि आप इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या ये आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये किसके बेसिस पे मैं कहूँ? कोई ना कोई एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या आपकी ज्योग्राफी इनकी ज्योग्राफी से अच्छी है, या इनकी ज्योग्राफी आपकी ज्योग्राफी से अच्छी है. ज्योग्राफी मतलब आई मीन नॉलेज ऑफ द ज्योग्राफी, सब्जेक्ट एज अ ज्योग्राफी. तो कैसे होगा? मैं दोनों को आपको एक टेस्ट दूंगा, अगर इनका स्कोर ज़्यादा अच्छा आता है और आपका स्कोर कम आता है तो मैं क्या बोलूँगा? कि इनकी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग से अच्छी है. ओके, so without scientific analysis very much depends upon to the element of measurement.
सो एक्यूरेट होना चाहिए. ऑर्डरली मीन्स इट हैज टू बी सिस्टमैटिक. Systematic matlab the things should not be isolated. We should understand the connection between the things. Okay, how the different things are connected with each other and how they are organized orderly. And the next one is rational description. Means it should not be based on your own notions. Okay, जैसे religions में, जैसे कई religion के अंदर में, okay, Christianity के अंदर में भी क्या था कि पोप ने कहा कि भाई दुनिया चपटी है. ओके, ज्यादा दूर मत जाना, पानी में गिर जाओगे. ये था ना. फिर वो रेनेसेंस आता है, तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इस चीज के बारे में. रेनेसेंस है. ओके, तो जब रिलीजन डोमिनेटेड सिस्टम्स थे, जब रिलीजन्स डोमिनेटेड सिस्टम थे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि रिलीजन्स में रैशनैलिटी नहीं होती. अगर हिंदू रिलीजन की बात करें तो हिंदू रिलीजन में बहुत ज्यादा रैशनैलिटी, बट प्रोवाइडेड हम वो चीज़ पढ़ते हैं हिंदू रिलीजन के अंदर में नहीं पढ़ते हैं. अगर हम अपने वेदों को पढ़ते हैं, ओके, वेद अगर जो हैं हमारे एंशिएंट लिटरेचर्स हैं, ओके, अगर हम उन चीज़ों को पढ़ के देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि दैट दे आर बेस्ड ऑन अ आइडिया ऑफ रैशनैलिटी. दे आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रैशनैलिटी. ओके, और रैशनैलिटी तभी आएगी जब आपकी प्रीमाइसेस जो होंगी वो रैशनल होंगी और वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होंगी. फॉर एग्जाम्पल, सीसेट में सिलोजिज्म सॉल्व करते हो, सिलोजिज्म की करा होगा तुमने. ओके, चलो मुझे बताओ. ऑल मेन आर इंटेलिजेंट. ऑल इंटेलिजेंट आर ऑल इंटेलिजेंट्स आर स्मार्ट. So what is going to be a conclusion? All men are smart. ये कंक्लूजन हो गया. ओके, अब ये कंक्लूजन तभी वैलिड माना जाएगा जब ये दोनों वैलिड होंगी. ऑल मैन आर स्मार्ट, एक को ढूंढ लो. ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, अब इसको निगेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई एक बंदा चाहिए बस. कोई एक ऐसा मैन ढूंढ लो जो इंटेलिजेंट नहीं है. तो ये क्या हो गई? ये डिस्प्रूव हो जाएगी. और जैसी ये डिस्प्रूव होगी तुरंत आपका कंक्लूजन चेंज. अब आपने दिमाग के अंदर में बैठा लिया. कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्री कंसीव नोशंस पे बेस्ड, प्रेजुडिसेस पे बेस्ड अपने कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है, जैसे कई बार रिलीजियस प्रेजुडिसेस जो होते हैं वो हमारे अंदर में आ जाते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो काफ़ी फंडामेंटलिस्ट होते हैं, या हमारे दिमाग में आता है कि इस तरीके जैसे फॉर एग्जांपल रीजन बेस्ड हो जाते हैं. बंगालीज आर गुड मैथमेटिशियंस, बिहारीज आर इंटेलिजेंट. ओके, मतलब ये बन जाता है दिमाग के अंदर में कि जो आईएएस की तैयारी कर रहा होगा बिहार का होगा, बिहार वाले होंगे. ऐसा नहीं है. अब पहले था वो, अब तो सारे स्टेट्स के, अब तो राजस्थान आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गुजरात परफॉर्म कर रहा है, महाराष्ट्र अच्छा परफॉर्म. ओके, पहले था कि बिहार से ही ज़्यादातर लोग हुआ करते थे. अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी परसेंटेज के अंदर में ज़्यादा हैं और अच्छी रैंक्स के अंदर में ज़्यादा हैं, बट अदर स्टेट्स आर ऑल्सो डूइंग गुड. ओके, तो अगर आपके पास कोई स्टीरियोटाइप बना हुआ है या प्रेजुडिसेस बने हुए हैं और आप उसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो वो रैशनल नहीं. दैट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी रैशनल. इज दिस क्लियर? और रैशनल होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और ऑब्जर्वेशन के जो इंफॉर्मेशंस हैं उनके जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बीच में कंपैरिजन भी होना चाहिए. भाई मानसून फेल हो गया या मानसून खराब हो गया, कैसे पता चला? क्या क्राइटेरिया है? नहीं, नॉट प्रीवियस मानसून, हमारे पास एवरेज रेनफॉल के डेटा होने चाहिए. नॉट अबाउट द प्रीवियस वन. वी टेक अ लॉन्ग अराउंड 50 years एवरेज, and then we find out that whether the monsoon was near to the average, below the average, okay, what type of the rainfall that we have. Okay, onset of the monsoon, भी मानसून आ गया, कैसे पता चला? बारिश तो वैसे भी आ जाती है. अभी मानसून की बारिश है, इसका पता कैसे चलेगा? ओके,
ऑनसेट ऑफ द मानसून। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, और ये तभी होगा कि when you are able to observe the things, when you are able to measure the thing। रेनफॉल अपने आप में एक फिनोमेना है। अब ये फिनोमेना कंटिन्यूअस नहीं होता, फिनोमेना जो होता है वो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो उसमें वेरिएशंस जो आते हैं उन वेरिएशंस को हम कैसे मेजर करते हैं। टेम्परेचर दिन भर के अंदर में फ्लक्चुएट करता है नहीं करता? किस दिन का कौन सा ऐसा टाइम है जब आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है? मैक्सिमम टेम्परेचर कितने बजे के आसपास होता है? 2 या 3 बजे के आसपास में मैक्सिमम टेम्परेचर आप जनरली करते हैं। और लोएस्ट टेम्परेचर रात को कितने बजे? 6:30 के बिल्कुल सनराइज से ठीक पहले का जो टेम्परेचर होता है वो आपका लोएस्ट टेम्परेचर उस 24 आवर्स के पीरियड। ओके, तो लोएस्ट। अब पूरे दिन का अगर आप टेम्परेचर कर्व बनाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर मैक्सिमम गया फिर मिनिमम पे। होता नहीं होता, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। अगर क्लाउडीनेस हो जाएगी, बादल आ जाएंगे, तो ये नॉर्मल प्रोफाइल से डिफरेंस हो जाए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि रात को दिन में 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद बादल आते हैं, तो आप देखोगे शाम के टाइम में आपको बड़ा सफोकेशन सा फील हो। कभी भी आप ऑब्जर्व 3 या 4 बजे के बाद अगर आपको बादल आ जाते हैं तो आपको काफी सफोकेशन सा फील होता है। ओके, और अर्ली मॉर्निंग अगर आपको क्लाउडीनेस मिलती है तो आपको ठंडक सी फील। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब अर्ली मॉर्निंग में आ जाता है तो सनरेज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तो अर्थ हीट ही नहीं हो पाती। और जब आफ्टरनून टाइम के अंदर में या 2 या 3 बजे के बाद आते हैं तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसके थ्रू अर्थ कूल होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हीट जो होती है वो अंदर ही अंदर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरीके से अंदर ही अंदर सर्कुलेट हो। यू गॉट दिस पॉइंट? सो एक्यूरेट होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए, रैशनल डिस्क्रिप्शन about the variable character. Now the another term is a variable character. Earth's surface is not uniform. Do we have a uniform Earth surface? No. We don't have a uniform Earth surface. We have mountains at places, at some places. We have a plain areas. We have a deserts. We have a forest. Okay, we have a plateaus. Different relief features are formed, and the different regions are having a different height above the sea level. Okay, and different type of features you will find. Now we have a mountains, Aravalli. Okay, we have a mountains, but Aravallis, and on the other side we have a Himalayas. So there are differences between the Aravallis and there are differences in Himalayas. Any hai? Okay, you cannot compare the Aravallis with that of the Himalayas. Is it clear? And in terms of the resources which we are going to receive from the Aravallis is going to be different from the resources that we are going to receive from Aravallis. में बहुत सारे resources हैं, granite है, limestone है, okay, and we have other important metals also, copper. Okay, we have the other important metals also. Is it clear? Okay, so variable character is not only in terms of a physical variation. फिजिकल सरफेस का ही वेरिएबिलिटी नहीं है, वेरिएबिलिटी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी है। माउंटेन्स पे अलग तरीके का क्लाइमेट होता है, ओके, और जो राजस्थान होगा वहां पे अलग तरीके का होगा। वेरिएबिलिटी तो यहाँ पे भी मिलेगी ना। इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहां पे अलग तरीके का आपको क्लाइमेट मिलता है, अगर आप पोलर रीजन के आसपास जाएंगे तो वहां पे अलग तरीके का क्लाइमेट मिलता है। तो वेरिएबिलिटी इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वहीं पे वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलती है। जो सरफेस है, फिजिकल सरफेस जो है वहां पे आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। वेरिएबिलिटी यू कैन सी इन ऑल द सेंस, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अ फिजिकल बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ ह्यूमन। कहीं पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पे ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, कहीं पे इकोनॉमिक इंटेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटिवली कम है।
अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जयपुर में इकोनॉमिक मतलब जयपुर में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो विच इंक्लूड कोचिंग और जितने भी हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू दी अदर सिटी ऑफ द राजस्थान। ठीक है, वो जोधपुर साइड भी हो सकते हैं और भी रीजंस। ओके, बट जयपुर एक कैपिटल सिटी है तो ऑब्वियसली जयपुर के अंदर में रिलेटिवली जो मतलब एक्टिविटीज मिलेंगी वो आपको ज़्यादा मिलेंगी। बट ऐसा नहीं है कि जयपुर में सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो दूसरे सिटीज के अंदर में ज़्यादा होंगी, वो जयपुर के अंदर में कम होंगी। तो वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो, we have a variability in terms of human activities also, in terms of human settlements also. पहाड़ों पे आप जाओ तो वहां का सेटलमेंट स्टाइल अलग तरीके का होता है। ओके, और अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे वहां पे सेटलमेंट स्टाइल आपको अलग तरीके का मिलेगा। कल्चर में ही आ जाओ, कल्चरल वेरिएबिलिटी मिलेगी आपको। राजस्थान के कल्चर में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, आपको कल्चरल एलिमेंट्स थोड़े से अलग अलग होंगे। और अगर आप बिहार में जाओगे तो कल्चरल एलिमेंट्स अलग होंगे। बिहार में लिट्टी चोखा और यहाँ पे दाल बाटी चूरमा। ओके, तो हो सकता है कि आप लिट्टी चोखा एज अ टेस्ट खा सकते हो, एज अ टेस्ट के तौर पे आप ले सकते हो, और वहाँ के लोग लिट्टी चोखा जो वो वहाँ के लोग दाल बाटी चूरमा एज अ टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कल्चरल वेरिएशंस भी आपको देखने मिलेंगे थ्रू आउट द ग्लोब। अगर आप यूरोप में जाओगे तो वहाँ पे अलग तरीके का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप वहाँ पे, अब यूरोप में नोबडी इज गोइंग टू पे अटेंशन व्हाट द वुमेन इज वियरिंग। ओके, व्हाट द गर्ल और वुमेन इज वियरिंग, नोबडी इज पेइंग अटेंशन। लेकिन अभी इंडिया के अंदर में अगर होगा तो पीपल स्टार्ट कमेंटिंग कि भाई लड़कियों को ये नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को वो पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो पीपल स्टार्ट, मतलब इंडिया के अंदर में या जो अगर हम देखें तो हैं, ईरान भी है इंडिया के अंदर, और भी बहुत सारे हमारे कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको इस तरीके के कल्चरल कंजर्वेटिवनेस जो होगी वो आपको देखने को मिल सकती है। अब मैं उसको कंजर्वेटिव तो नहीं कहूँगा, डिफरेंस कहूँगा मैं आपको, तो वो एक डिफरेंट है और वहाँ के आपको, तो दिस इज व्हाट अ वेरिएबिलिटी इज देयर, दिस इज व्हाट अ माय पॉइंट इज अबाउट वेरिएबिलिटी। अब वो कौन सही है कौन गलत है वो करने वाले हम नहीं है, जजमेंट क्रिएट करने वाले हम नहीं है। ज्योग्राफी इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। देखो दो तरीके की साइंस होती है, एक पॉजिटिव साइंस होती है, एक नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस आपको ये बताती है भाई ये चीज है और ऐसा क्यों है। एक जियोलॉजिस्ट जो होगा वो कहेगा कि एक फ्लावर को पढ़ रहा होगा, फ्लावर को ये कहेगा कि फ्लावर के कलर ऐसा है, इसका किस फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट कभी नहीं कहेगा कि ये फ्लावर उससे ज़्यादा सुंदर है। वो ठीक है, वो उसकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, बट एज अ जियोलॉजिस्ट इज नॉट गोइंग टू कंक्लूड इन टर्म्स ऑफ एनी सच नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। ओके, तो ज्योग्राफी कोई नॉर्मेटिव नहीं है, कोई मॉरल साइंस नहीं है, या मोरालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसके अंदर में कि अगर आप, हाँ जब हम सोशल ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं तब उसके अंदर में मॉरल एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जब हम पॉवर्टी की बात कर रहे हो। ओके, पॉवर्टी की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वह कुछ स्टेट्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। अगर आप देखो ना इंडिया के अंदर में कुछ स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम रिलेटिवली ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स को आज भी बीमारू स्टेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, कुछ स्टेट्स को आज भी बीमारू स्टेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है और कुछ स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम, उनका डेवलपमेंट जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। इज इट क्लियर? सो व्हाट आर द फैक्टर्स? पॉवर्टी कुछ स्टेट्स के अंदर में बीपीएल कैटेगरीज जो हैं वो ज़्यादा हैं और कुछ स्टेट्स के अंदर में बीपीएल कैटेगरीज कम है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो कोई स्टेट्स ऐसे हैं जो 100% लिटरेट कैटेगरी के अंदर में आती हैं, लिटरेसी रेट वहाँ पे 100% है। तो पॉपुलेशन एलिमेंट्स हैं और उन पॉपुलेशन एलिमेंट्स में भी आपको वेरिएबिलिटी आपको देखने को, ओके, पॉपुलेशन एलिमेंट्स हैं उनमें भी। अब जैसे फिजिकल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इंडियन ओशन में इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इनमें सैलिनिटी डिफरेंस है और इंडियन ओशन के अंदर में भी सैलिनिटी डिफरेंसेस है। सरफेस पे कुछ और है, अंदर कुछ और, नॉर्दर्न साइड पे कुछ और है, सदर्न साइड पे कुछ और।
और बच्चों वेरिएबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ये वेरिएबिलिटी है तभी एक्सचेंज है। अगर वेरिएबिलिटी नहीं होगी, ओके, और आइसोट्रॉपिक हो जाएगा, हर जगह एक जैसी चीजें हो जाएंगी, तो एक्सचेंज होगा क्यों? भाई कहीं पे कोई चीज किसी के कोई चीज ज्यादा है, कहीं पे कोई चीज कम है, तो ज्यादा से कम की ओर जाएगी। या कहीं पे की चीज की डिमांड है और दूसरी जगह वो बहुत ज्यादा है, वो डिमांड से ऊपर है। अब तुम देखो, तो जहां पे डिमांड है वहां उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब सेब है, कश्मीर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ओके। अब अक्टूबर नवंबर में आके कश्मीर एप्पल हार्वेस्टिंग, वॉलनट हार्वेस्टिंग, ये सब शुरू हो जाती है अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर में ही जाते जाते, ओके, एप्पल हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, अब कश्मीर के अंदर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई बोलेगा वहां पे 50 रुपए किलो सेब, कोई कह रहे हैं 50, 20-25 रुपए में देना है तो बताते, वहां का लोकल आदमी 25-30 रुपए में खरीदेगा या मैक्सिमम 40 रुपए में खरीद लेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर में वही सेब आदमी 200 रुपए का खरीद। गॉट माई पॉइंट? तो वेरिएबिलिटी है तभी क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, तभी सर्कुलेशन हो रहा है। कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है और कहीं पे टेम्परेचर कम है, ओके। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे लो प्रेशर बनेगा, जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होगा, एयर का फ्लो होगा। द एयर विल फ्लो फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर। So understanding this, first of all we need to understand what are the variable characters and in which areas we can find the variable character. And I'll say that nearly in all the aspects of the earth, including the human, you will find the variable character. ह्यूमन में भी वेरिएबिलिटी है, आपकी शक्ल, इनकी शक्ल, दूसरों के सब एक जैसे थोड़ा कोई है। कल्चरल वेरिएबिलिटीज आपको देखने को, ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होते हैं वो भी वेरी करती हैं। पर राजस्थान के अंदर में एक अलग तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न होगा, और अगर हम बिहार के अंदर में जाएंगे वहां पे एक अलग तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न होगा। राजस्थान में पीपल मे नॉट बी सो फॉन्ड ऑफ राइस, ओके। राइस का इतना ज़्यादा नहीं होगा, कंजम्पशन जो है मैं ज़्यादा समझता हूँ, बिकॉज द पीपल प्रेफर टू हैव अ रोटी, रोटी चपाती जो होता है वो कल्चर ज़्यादा है, ओके, और वो चीज़ ज़्यादा है, ओके। और अगर आप बिहार के अंदर में जाएंगे तो नो राइस नो फूड, बंगाल के अंदर में जाएंगे फिश एंड राइस, बंगाल के अंदर में जाएंगे तो फिश एंड राइस, वो उनका जो कोस्टल एरियाज में लोग रह रहे हैं, पीपल हु आर लिविंग इन अ कोस्टल रीजन्स, वहाँ दाल तो होती नहीं ना, तो वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी कहाँ से पूरी करें, फिश, सी फूड, ओके। तो ह्यूमन का जो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है, अलग अलग इकोलॉजी के अंदर में ह्यूमन अडेप्ट करता है, और उसी एडेप्टेशन के थ्रू वो कल्चरल नॉर्म्स क्रिएट करता है, और उसमें कल्चरल वेरिएशंस आते हैं। तो different ecology, the adaptation of the human in a different ecological setup may have resulted into a different types of human activities, okay। in metro cities या जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पे आपको क्या मिलेगा कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के अंदर में, कि वहां पे यू विल फाइंड दैट द women and men both are working, okay, because staying in a big city to and maintaining a lifestyle, a certain lifestyle or a standard of a living requires a certain minimum income. Point is clear? Point is clear? तो वो चाहिए, लेकिन छोटे शहरों के अंदर में क्या होगा कि वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जनरली आप देखेंगे छोटे शहरों के अंदर में वुमेन इज सीन टू बी मोर एंगेज्ड इन अ हाउस रिलेटेड एक्टिविटी, ओके। हम होमली टास्क जो होता है उसके अंदर में, मतलब शी वुड बी जनरली कंसिडर टू बी एज अ हाउस मेकर, ओके। और उसको उसी तरीके से वो चल रहा हो। लेकिन इन अ बिगर सिटीज अगर आप देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस, ओके। तो दिस इज अबाउट द वेरिएबल कैरेक्टर। ये क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर, okay, and this variable, it is because of this variable character of the earth surface it becomes complex to understand, and it is ever changing,
आज से 10 साल पहले जो नेचर था अर्थ सरफेस का, या जो चीजें थी, वो आज से 10 साल बाद नहीं होंगी। अरावली हो सकता है मे बी आफ्टर 2200 ईयर्स और 300 ईयर्स अरावलीज में बी इरोडेड। अभी भी बहुत इरोजन हो चुका है अरावलीज का। और इट मे बी पॉसिबल दैट a climate change may take place and the Rajasthan may develop to be as a lush green area. Okay, a desert of the Rajasthan, the western part of the Rajasthan, a Thar desert may develop to be as a lush green area. Okay, वो कब होगा? जब सर्कुलेशन पैटर्न चेंज होगा। अगर सर्कुलेशन पैटर्न चेंज हो गया तो राजस्थान अपने आप में एक अच्छा खासा बन जाएगा। राजस्थान में मॉइस्चर की कमी थोड़ी कोई है। Deserts are not actually dry or devoid of moisture. मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को about the desert dryness, dry problem. ओके, वो डेवलप हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो जाएं कि ये राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया एक्सपेंड होते 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 काफी बड़े एरिया को कवर करने लगे। दैट विल बी कॉल्ड टू बी एज अ डेजर्टिफिकेशन और स्प्रॉलिंग, डेजर्ट स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग ऑफ द डेजर्ट। ओके, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ। यही ज्योग्राफी है। इफ वी से दैट सिंपली द स्टडी ऑफ द अर्थ, नो। ओके, इट इज अबाउट स्टडिंग द अर्थ वेरिएबल कैरेक्टर। एंड स्टडी का मतलब क्या है? एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रैशनल, मीन्स अ साइंटिफिक स्टडी। नथिंग अकर्स इन अ वैक्यूम। इन अ ज्योग्राफी नथिंग अकर्स इन अ, हवा भी ऐसे नहीं चलती है कि आज मना गया चल देते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर कॉजल फैक्टर्स। okay, and we need to understand those causal factors which are making a changes over to the earth surface. जब अर्थ बनी थी तो भी वो कॉजल फैक्टर्स थे। अर्थ का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम अ फायर बॉल टू द प्रेजेंट स्टेज। ओके, और आगे भी इवॉल्व होती रहेगी अर्थ। तो क्लाइमेट चेंज से क्या होगा? एक्सटिंक्शन होगा ऑफ अ सर्टेन स्पीशीज, एंड इट इज लाइकली दैट ह्यूमन में बी may likely to get affected by this climate change in the next wave of extinction. तो अर्थ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अर्थ तो फायरबॉल सा ही है। अगर कल को फायरबॉल भी बन जाती है तो भी अर्थ का क्या बिगड़ना है? एंड दैट इज व्हाई वी स्टडी द अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। हमारा मेन कंसर्न एरिया क्या है? व्हाई वी आर स्टडीइंग सच वेरिएबल कैरेक्टर? बिकॉज अर्थ इज अ होम ऑफ मैन। So all the human activities, its effects on the earth surface, and earth surface का जो effect on the human है, वो दोनों, यानी कि a reciprocal interaction between the man and its environment is basically a subject area of a job. Point is clear? Okay, write down some more definitions about a geography. Geography is a study of Earth's surface as a home of man. As a home of man. Next लिखिएगा और भी definition, because you cannot say that one particular definition is going to be sufficient. Geography is also called as a study of man and its relationship with its environment, okay, with its environment, or here the meaning of the environment is taken to be as a earth surface. Environment is taken to be as a earth surface. This point is clear? Now write down a next heading. What is earth surface? What is, हम बार बार यूज कर रहे हैं ना अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस का मतलब क्या है?
Earth surface. What is Earth surface? What is Earth surface? Okay, देखिएगा in geography Earth surface is a zone up to where is a zone ZONE up to where the human can reach or it is a universe of all human endeavor all human endeavor. Okay, अर्थ सरफेस का ज्योग्राफी में मतलब है कि द यूनिवर्स ऑफ ऑल ह्यूमन एंडेवर. So therefore many times the meaning of the earth surface is very much dependent upon to the technological advancement. Okay, अब अर्थ मीन्स डेप्थ में कहां तक जा सकता है, ऊपर में कहां तक जा सकता है, that will be counted as a part of a earth surface. So here in the context of a geography, the earth surface is not a physical surface that we are taking. It is a complete universe of all human endeavor. Okay, आगे लिखिएगा broadly earth surface the earth surface consists of the earth surface consists of four realms. Earth surface consists of four realms. Okay, earth surface consists of four realms. Okay, आगे लिखिएगा. अब पहला realm क्या है? The first realm that we take is a lithosphere, or sometimes we call it to be as a geosphere. Okay, and within the geosphere we take a upper part, and that is called to be as a, this point is clear? Okay, second, नहीं एस्थेनोस्फेयर तो बेटा जियोस्फेयर में ही आ जाएगा ना. ओके, देन वी हैव एटमॉस्फेयर. Okay, then the third one that we have is a hydrosphere, and the fourth one that we have is a biosphere. This point is clear? Biosphere. Okay, up. Geography is not a study of geosphere, atmosphere, hydrosphere or biosphere in an isolated way or in a compartmentalized way. It studies about the interconnection which results into a variable character of the earth's surface. That is a geography. देखिएगा next point. Geography studies about the earth as a system. Studies about the earth as a system. Okay,
as a system which involves interconnectedness between geosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. ओके जब हम इस इंटरकनेक्टेडनेस को पढ़ते हैं तभी हम क्या बनते हैं, देन वी अंडरस्टैंड अ सिस्टम. ओके सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ सिस्टम? व्हाट इज अ सिस्टम? यस कह सकते हो यस बट अगर थोड़ा सा और अच्छा सा हम बोलें तो क्या बोलेंगे सिस्टम के बारे में? अब बॉडी इज अ सिस्टम. Do we call our body as a system? ओके आप भी सही हो, आप भी सही हैं. आप बताएं बेटा. ओके चलो हम कई सारे वर्ड यूज करते हैं, कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? इकोसिस्टम, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स सिस्टम, ओके अपने ड्रेनेज सिस्टम, ओके चलो ह्यूमन मेड सिस्टम्स की बात कर लेते हैं. पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम. कभी आपने ध्यान दिया वर्ड सिस्टम को लगाया गया है? A systematic way of working, na, you mean to say a systematic way. But when we say a systematic way means a something operating as a system, है ना? Yes, interconnectedness. आपने भी बोला था पहले interconnectedness को ले. The meaning of a system is an integrated whole okay every system consists of many elements and these elements are integrated through interconnectedness and they creates a whole, a perception of a whole. हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर में कई सारे सब सिस्टम है, नहीं है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ओके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिल्टरिंग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. जब ये सबको मिला देते हैं हम तभी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी बनता नहीं बनता? कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बनता है ना. तो अर्थ के अंदर में भी क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. These are the elements. You can call them to be as a subsystem also. And they all are integrated. So in order to understand the earth as a system, okay, it is very important that you understand, first of all you understand them individually and then you understand the interconnectedness among. ऐसा थोड़ी कोई कि अगर ग्रीनलैंड में कुछ हो जाएगा तो इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अरे पड़ेगा यार, तुम्हारा मानसून ही इफेक्टेड हो जाएगा.
ओके ऐसा थोड़ी कोई है कि चाइना पोल्यूशन करेगा तो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अपर एयर सर्कुलेशन तो पूरे ग्लोब पे होता है ना, अपर एयर से सर्कुलेशन तो पूरी ग्लोब पे जाएगा। ओके राजस्थान के अंदर में सबसे ज्यादा, पूरे हमारे इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वहां पे एरोसोल्स सबसे ज्यादा होते हैं, डस्ट जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ये डस्ट केवल राजस्थान की ही नहीं है, ये डस्ट सारी अरेबियन पेनिनसुला से भी आती है, ईरान से भी आती है, बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके तो हमें ये इंटरकनेक्टेडनेस को पढ़ना है ज्योग्राफी, इसलिए जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते वक्त ये नहीं सोचना है कि क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेटोलॉजी अलग रखेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी अलग रखेंगे और ओशनोग्राफी अलग रखेंगे, सबको आपस में सबके कनेक्शन को आपको समझे? ओके क्या समझे बताओ? यानी कि आपको क्या पढ़ना है? सिस्टम अर्थ पढ़ना है। यू नीड टू स्टडी द अर्थ एज अ सिस्टम। और अर्थ भी अपने, अर्थ ऐसा नहीं है कि अर्थ हम सिस्टम के तौर पे हैं, तो अर्थ इज अ सब सिस्टम ऑफ अ लार्जर वन, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पूरे यूनिवर्स का सब सिस्टम है, या सोलर सिस्टम को गैलेक्सी में डाल सकते हो, गैलेक्सी को फिर बड़ा कर सकते हो तुम उस चीज को लेके। गॉट माई पॉइंट? ओके तो you are in yourself as a complete system, but you are also a subsystem of a larger system. This point is clear? Okay देखो ज्योग्राफी तो यही है जो आपको पढ़नी है, बाकी मुझे बता देना पेड़ पहाड़ झरने पढ़ने हैं तो वो बहुत आसान टॉपिक है मेरे लिए। ओके अगर ज्योग्राफी जो पूछी जाती है एग्जाम के अंदर में वो यही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। ओके अब मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं, जियोस्फेयर जो है वो कंप्लीट सॉलिड अर्थ को कहा जाता है। कंप्लीट सॉलिड अर्थ इज कॉल्ड टू बी एज अ जियोस्फेयर एंड द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड टू बी एज अ लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ गैसियस एनवेलप, गैसियस एनवेलप, गैसियस एनवेलप। एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज अ गैसियस एनवेलप। एंड देन हाइड्रोस्फेयर, यस हाइड्रोस्फेयर क्या है? वाटर और जितनी भी वाटर बॉडीज है। ओके अब हाइड्रोस्फेयर अपने आप में अलग नहीं है, हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर में भी है, जियोस्फेयर में भी है, सॉइल के अंदर में भी मॉइस्चर है, और वो बायोस्फेयर के अंदर में भी है, हमारे अंदर में भी है, और पेड़ों के अंदर में भी है। Is it clear? And all the entire living part is called to be as our biosphere. Point is clear? एक और डेफिनेशन लिखो। देखिएगा, ज्योग्राफी इन्वॉल्व्स a study of, geography involves a study of earth bounded phenomena. Geography involves a study of earth bounded phenomena, earth bounded phenomena. ओके अर्थ बाउंडेड फिनोमिना, जो अर्थ पे फिनोमिनाज होते हैं। बट व्हाट इज फिनोमिना? फिनोमिना क्या है? व्हाट इज फिनोमिना? क्या? ग्रेजुअल भी हो सकती है, सडन भी हो सकती है। देखो एनी ग्रेजुअल और सडन changes which brings new reality
which brings new reality, or which changes the reality, which changes the reality, which changes the reality. Which changes the reality. अभी गर्मी हो रही है, बारिश हो गई, फिनोमेना, उसने रियलिटी चेंज कर दी नहीं कर दी? टेम्परेचर कम हो गया, रियलिटी चेंज हो गई. Any activity which changes the reality or brings a new reality, that is called to be as a phenomena. अब phenomena भी अलग अलग तरीके के होते हैं, देखिएगा. there are different types of geographical phenomena. There are different types of geographical phenomena. Okay, phenomena means activity which brings new reality, which brings new reality. Activity which brings new reality, that is called phenomena. But how many types of the phenomena takes place? Now there can be physical phenomena. There can be biological phenomena. Or there can be human phenomena. Human phenomena. ओके, अब सिलेबस याद करो. जियो फिजिकल फिनोमेना याद है? जियो फिजिकल मतलब फिजिकल फिनोमेना विच आर रिलेटेड टू द अर्थ, दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ जियो फिजिकल फिनोमेना. बट व्हाट इज अ फिजिकल फिनोमेना? How you will differentiate between a physical phenomena, biological phenomena and human phenomena? कह सकते हो? Yes, which are taking place. Physical phenomena do not involve any living component. Biological phenomena may be a natural phenomena but involves a living component, okay, except human. क्या चीज? क्या चीज बेटा? क्या चीज जरूरी नहीं है? यस, बायोलॉजिकल फिनोमेना, तभी तो हम बायोलॉजिकल बोल रहे हैं, अदरवाइज हम बायोलॉजिकल बोलेंगे क्यों? Climate change is a physical phenomena, also a physical phenomena which will result into a biological phenomena. Physical phenomena और biological, अभी तो मैंने आपको बताया, physical phenomena is more related to the physical part of the earth. सब चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है बेटा. ओके, you may induce a physical phenomena. You can induce a physical phenomena. There is no sequence कि पहले फिजिकल फिनोमेना होगा फिर ऐसा होगा. योर एमिशन, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन अगर आप करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हो, इट विल रिजल्ट इनटू अ चेंज इन योर फिजिकल एलिमेंट्स. तो अर्थ सिस्टम अपने आप ही चेंज हो जाएगा. अभी मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अगर आप गैसेस का कंपोजिशन चेंज कर दोगे, गैसेस का अगर कंपोजिशन चेंज कर दोगे, अभी कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन 1%, वेरी लेस, लेकिन अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को बढ़ा दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? इट विल रिजल्ट इनटू मोर इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर. अरे होगा या नहीं होगा? ये तो सबको पता है ना ये बात, तो उसके लिए तो ये तो सिंपल सी बात है. ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ओशन के टेम्परेचर्स बढ़ेंगे. ओशन के टेम्परेचर्स अगर बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? सी वार्म होगा. सी वार्म होगा तो वहां पर ज्यादा साइक्लोन एक्टिविटीज जनरेट होंगी.
अब साइक्लोन अपने आप में क्या है? फिजिकल फिनोमेना। ओके, अब फिजिकल फिनोमेना में ट्रिगर अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, a physical phenomena may trigger a certain biological phenomena, for example in terms of extinction of a species or a migration of the species. Okay, a landslide is a physical phenomena, but the effect of the landslide may trigger another phenomena. Okay, a flood is a physical phenomena. Okay, but destruction of the human life properties, okay, it will result into a new reality. Phenomena की definition क्या है? Any activity of the nature, human is also a part of the nature. Okay, any activity of the nature which results into a new reality, that is called phenomena. और हमेशा होता है बेटा, अर्थ तो लगातार चेंज हो रही है. आप जब लौट के अपने घर पे घर जा रहे होंगे तो यू आर नॉट ट्रैवलिंग ऑन द सेम सरफेस. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इरोजन हो चुका है, वेदरिंग हो चुकी है, किसी पे धूल जम गई है, कुछ हो गया, यू आर नॉट ट्रैवलिंग ऑन द सेम सरफेस. ठीक है, वो आपकी परसेप्शन की रेंज से बाहर होगा. कहने सर इसका मतलब दोबारा नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, मेरा कहने का मतलब है कि वो बहुत बहुत नेग्लिजिबल सा होगा, अनडिटेक्टेबल होगा, बट होगा जरूर. Are you getting my point? Okay, so physical phenomena, okay, are result of a certain phenomena or the activities taking place over to the earth's surface which do not involve a living being. Biological phenomena which involves a living beings but not human beings, and human geographical phenomena, everything physical geographical phenomena या geophysical phenomena. So earthquake क्या है? earthquake है? बोलो बच्चों, बोर हो रहे हो क्या? earthquake, volcanoes, mountains, ये सब क्या है? physical phenomena. Biological phenomena, extinction, migration. Okay, population, biological phenomena. Okay, human phenomena, settlements. With your settlements, you have changed the surface of the earth. Canals, dams, settlements. Human activities, emission of gases, pollution. Okay, अभी isolated है नहीं. Human phenomena may cause a physical phenomena, may trigger a physical phenomena, and the physical phenomena may trigger a biological phenomena, or a human phenomena may cause a biological phenomena, or a biological may trigger a human one. Forest अगर खत्म हो जाते हैं तो it will have a effect on human. Obviously biological phenomena और human पे भी फर्क पड़ेगा और physical पे भी फर्क पड़ेगा, surface पे भी फर्क पड़ेगा. Okay, so everything is what? Very good, interconnected. और ज्योग्राफी में यही इंटरकनेक्शन आपको यही इंटरकनेक्शन आपको समझना है ज्योग्राफी के अंदर में, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफी. ओके, सो अब ज्योग्राफी को पढ़ने के दो तरीके हैं. एक तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है कि हम किसी एक एरिया को उठाते हैं और थ्रू आउट द ग्लोब पढ़ते हैं, वो सिस्टमैटिक हो गया. और एक रीजनल अप्रोच होती है कि हम वी डिवाइड द ग्लोब इन अ सर्टेन रीजन्स एंड वी स्टडी अबाउट different रीजन. तो जब हम सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की बात कर रहे होते हैं तो वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी.
And then when we are studying about the things in terms of regional geography, then we are dividing the geography as a world geography and a Indian geography. Okay, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिर इंडियन ज्योग्राफी की तरफ हम लोग चलेंगे. ओके, तो 3 घंटे की क्लास है आप लोगों की, 2 घंटे की क्लास है, मुझे थोड़ा सा बता दो. 2 आवर्स की है. आई थिंक सम अदर टीचर विल बी टेकिंग. मैंने उनका टाइम ले लिया लगता है थोड़ा सा. ठीक है बच्चों, क्लास कोई नहीं मिस करेगा. क्लास मिस करोगे तो फिर जो सोवत है सो खोवत है.